to present a planter to Dr. Avdesh Pandey as a gesture of gratitude. Thank you, sir. I now request Dr. Avdesh Pandey to kindly come on stage for this health session. Hello, and thank you for inviting me to this gathering of students. We are working on the next generation, so it's so great an opportunity to be here with you, with the students of 11th standard of KL International School. So that was a good yes, and I heard it right. So we straight away start with a presentation on health and disease. We'll make it interactive and interesting because at the end of the day, what matters is what have you understood by this? Health and disease. Normally, doctors are boring people. They everything, attire, looks, the way they talk, it's all boring. So to make it interesting, we have very many things which you will like. We will take you through a journey of history, civics, geography, literature, Bhartiyata, and come back to health and disease. And all this, how it interacts and impacts your health. Because we don't only talk about physical health. Health is daihik, daivik, adhyatmik. Physical as well as metaphysical. So if you don't correct your health at the metaphysical level, if you are sick, you expect that the physical health will be good. That is great expectation. It won't be. So your physical as well as metaphysical needs to be right. Now we start with the first slide, please. So let food be thy medicine. Have you heard this before? Have you heard the name of Hippocrates? Hippocrates is the father of modern medicine. And I've read Hippocrates' works. He was in 200 BC, that is around 2400 years from now, and he is still the father of modern medicine. So there has to be something which has kept him the father of modern medicine for so long. How? पैरास्टामोल की कंपनी तो उस समय नहीं थी और ना ही एंटीबायोटिक्स थे, तो वो क्या देते थे? एंड व्हाट इज मेडिसिन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन? Definition of medicine is very important because whenever one says medicine, लोगों को लगता है कोई ना कोई पिल दिया जाएगा. There is no pill for any ill. You name a pill and you name an ill. डायबिटीज की दवा से डायबिटीज ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर की दवा से ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, कैंसर की दवा से कैंसर ठीक हो गया. So there is no pill for any ill, but there is an ill after every pill. We need to understand that. Okay? Medicine ka definition, if you look at the Cambridge and the Oxford dictionaries, dictionary, by the way, since we are in school, we should know, where did this word come from? You've heard of Diksha. ये संस्कृत से चुराया हुआ वर्ड है. Just wanted to let you know. टीचर्स यहाँ पे हैं. टीचर्स को एडुकेटर्स कहते हैं. कभी गूगल में ट्राई करिएगा देखने का एडुकेटर का एटिमोलॉजी क्या है, कहां से आया ये वर्ड एडुकेटर. कैन एनीबडी टेल मी? एडुकेशन, एडुकेटर, ये वर्ड कहां से आया? वेयर डिड इंग्लिश बीइंग अ स्लैंग लैंग्वेज, इट्स बेसिकली अ स्लैंग लैंग्वेज. संस्कृत is the mother of all languages, but English never accepts that it has stolen from Sanskrit, which is why Bharat is kept at a low ebb, because जिस दिन भारत जग गया इन सब की बैंड बज जाएगी. उनको पता है कि चोरी कहाँ से किया है. फॉर एग्जाम्पल,
people doing biology here would know that this part of the brain is called cerebrum. Where has this word come from? In Sanskrit, it's called Shirobrahm. So where has this word come from? You look up Google. They will say it has come from Greek. But don't you have common sense? You think Google knows all? Shirobrahm and cerebrum, direct chori hai ye. This part of the brain is called cerebellum. In Sanskrit, it's called shirolom. So we know where things have come from. Teachers are educators. Educator word कहां से आया? Education कहां से आया? थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर भी हमें जानना चाहिए ना, करिकुलर के साथ साथ. सो वेदों के ज्ञाता को अधिकारी कहते थे. अधिकारी टाइटल दिया जाता था उनको. आई हैव अ फ्रेंड प्रवीर अधिकारी. सो अधिकारी यूज्ड टू बी अ टाइटल गिवन टू पीपल जो चारों वेदों को ठीक से जानते थे. उनको ये अधिकार दिया जाता था कि अब आप पढ़ा सकते हैं. इसीलिए उनको टाइटल दिया जाता था अधिकारी. अधिकारी सीधा का सीधा ग्रीक ने चोरी किया. नाम आया एडुकैरी. एडुकैरी से इंग्लिश ने चोरी किया एडुकेटर. वहीं से एडुकेशन आया. सो वी नीड टू नो कि चीजें कहां से आ रही हैं और कौन चोरी कर रहा है. नॉनदलेस वी स्टार्ट विथ लेट फूड बी दाई मेडिसिन. सो medicine from the definition point of view is anything that cures or prevents a disease. So it could be anything, not necessarily a drug. Why can't food be medicine? Why can't your talk be medicine? Why can't love be medicine? Why can't heat be medicine? Why can't light be medicine? Why can't sound be medicine? Everything is sound, everything is vibration, isn't it? साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? तो वाइब्रेशन, आई एम श्योर स्टूडेंट्स नो व्हाट इज वाइब्रेशन. व्हाट इज वाइब्रेशन? So I am sure you will know, you would be introduced with quantum physics also. So न्यूटोनियन फिजिक्स का जमाना गया, क्वांटम फिजिक्स का जमाना है. सो न्यूटोनियन फिजिक्स में आपने जो भी पढ़ा है वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन क्वांटम में वो काम नहीं आता है. तो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. बाय द वे, the vibration that you can hear with human ears is called sound. 20 to 20,000 hertz, that is sound. Below 20 is subsonic. Above 20,000 is, so you know. So E is equal to mc square, है ना? सबको पता होगा. Can anybody tell me what it means? What does it mean? Why is this equation important? Why did he get a Nobel Prize? क्योंकि अभी तक इससे बड़ा साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है. So why was that important? साइंस के स्टूडेंट्स हैं 11th के. Somebody has to tell me what is E is equal to mc square. What do you mean by that? आपके हाथ में सेलफोन है? अगर है तो वो संभव नहीं होता अगर E is equal to mc square नहीं होता. तो there are 3 findings that have changed the world in the last 150 years. It's homework for you to find out कि वो 3 फाइंडिंग्स, साइंटिफिक फाइंडिंग्स क्या थे जिसने पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया. One of them was atom bomb, जिसने पावर स्ट्रक्चर को यूरोप से अमेरिका में पुश कर दिया. यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड को अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड
एटम बॉम्ब ने बनाया। एटम बॉम्ब के प्रोपाउंडर कौन थे? ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आइंस्टीन। और पीरियोडिक टेबल हम लोग को मालूम है कि नहीं? याद कर लीजिए पीरियोडिक टेबल, बहुत सिंपल होता है और बहुत काम आता है। उसको आपके कई क्वेश्चंस उससे आंसर हो जाएंगे। इनफैक्ट हम लोग तो रट लिए थे, ह हे ली बे बे बकनोन, यू नो दैट वेज। ह फॉर हाइड्रोजन, ही फॉर हीलियम, ऐसे कर। एनीवे, तो ये कौन थे? हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? हाँ, मेंडलीव। वन पर्सन शुड टेल मी। Okay, so he was from Germany. ये जो तीनों लोग थे, मेंडलीव क्यों? मेंडलीव नहीं, क्या नाम था उसका? पीरियोडिक टेबल, somebody else, जो बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स में, आई डोंट रिमेंबर नाउ। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। ये तीनों संस्कृत के पंडित थे, ये तीनों वेद जानते थे। ओपेनहाइमर ने जब एटम बॉम्ब ड्रॉप किया या ड्रॉप करवाया, he said that he used to carry Bhagavad Gita in his pocket. Remember that? और हमसे ज्यादा संस्कृत वो जानते थे। So there has to be a connection between Ved and changing the world. So we need to understand that. That is the importance. So E is equal to mc square. ये important क्यों है मैं आपको दिखाता हूं। Energy is equal to mass. C is cosmological constant. So it's constant. उसको constant मान लिया जाए, C square constant हो गया। Energy is equal to mass. इसका मतलब हुआ, सपोज देयर इज अ माइक 400 ग्राम का है, इसमें C स्क्वायर का फोर्स लगेगा तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कूल डाउन अगर कर दिया जाएगा तो मास बन जाएगा। इजंट इट? यही है ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो कहां प्रॉब्लम है समझने में? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संघारे। कहां प्रॉब्लम है समझने में? क्यों साइंटिफिक नहीं है? इट इज जस्ट दैट हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों है ऐसा। एनीवे, सो दिस इज हाउ वी ब्रिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो द फूड दैट इज देयर एज मेडिसिन कैरीज नेचर्स सिग्नेचर। नेचर आपको टेलीफोन करके थोड़ी बताएगी कि ये चीज हमने यहाँ पे दे दिया है, दिमाग दिया है, समझ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रहा है क्या है, उसके बगल में क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बादाम को अगर आप भिंगा लें, कभी भिंगा लीजिएगा, आज रात को भिंगा लीजिएगा, कल सुबह देखिएगा उसमें वो जो रेड रेड जो दिख रहा है वो आर्टरीज जैसा नहीं दिखता है। तो क्या नेचर कुछ बताना चाह रही है कि जब आर्टरीज में ब्लॉकेज आए तो ये खाना चाहिए? दिस इज नेचर सिग्नेचर। आप किस बात के लिए वेट कर रहे हैं? कोई डेसिफर करेगा? दिमाग नहीं है क्या? दिमाग जैसा क्या दिखता है? नेचर ने सिग्नेचर करके भेजा है। तो क्या जब ये कम हो जाए तो क्या खाना चाहिए? दैट इज नेचर सिग्नेचर, यू नो दैट। So that is how, that is the first step of understanding that food could be medicine. Next slide, please. So the digestive system, everything starts and ends in the digestive system. कैसे? All diseases known to mankind
एक बॉटम लाइन स्टेटमेंट आप अपने पास रख लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से प्रोफेशन में वास्ता प्रोफेशनली ना ही पड़े तो जिंदगी अच्छी चलती है। तीनों में से किसी से वास्ता पड़े, सिर्फ जिंदगी नहीं बिखरती है, जो आपने संजोया है वो भी बिखर जाते हैं। और ये संभव था कैसे? जुबान पे लगाम रहने से। किसने आपको बताया ब्रेकफास्ट जरूरी है? किसने बताया लंच जरूरी है? किसने बताया डिनर जरूरी है? किसने बताया आपको? फूड इंडस्ट्री ने। क्या फूड इंडस्ट्री चाहेगी कि उसका सामान बिके ना? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, FDA, the biggest food and drug authority, the biggest institution in the whole world, कहां पे है? FDA, US। तो क्या जरूरत थी? फूड और ड्रग को एक साथ क्यों आना पड़ा? अथॉरिटी बन के क्यों आना पड़ा? वो अथॉरिटी चलाती क्या है? दुनिया चलाती है। इन केस यू डिड नॉट नो, यूएस का प्रेसिडेंट उनकी जेब में होता है। दुनिया चलाती है FDA। FDA का क्या मतलब है? FDA के गुन्स इतने ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं। FDA, फूड एंड ड्रग को एक साथ क्यों आना पड़ा? फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे, ताकि आप जिंदगी भर के लिए ATM बने रहें उनके। अब तो पीडियाट्रिशियंस को भी समझाना शुरू कर दिया, ये जो फॉर्मूला फीड है ये मां के दूध के बराबर है। मां का दूध का जवाब अगर दुनिया में कहीं मिल गया तब दुनिया बदल जाएगी। फॉर्मूला फीड में तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो इट इज एज गुड एज मदर्स मिल्क। इट्स अ वेरी नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट। इनफैक्ट नॉनसेंस वर्ड नॉन साइंस से आया है। व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज नॉन साइंस? तो नॉन साइंस से नॉनसेंस से आया है। तो दैट इज हाउ द फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वर्क्स। आप उसके ATM हैं। जब तक जिंदा रहेंगे या तो फूड खरीदेंगे या ड्रग खरीदेंगे, मरते दम तक, पैदा हुए से लेके मरते दम तक आपका ATM कार्ड FDA को जाता है। गौर करिएगा स्टेटमेंट पे। सो फूड कैन बी कुक्ड, फूड कुड बी अनकुक्ड। अनकुक्ड फूड, रॉ फूड लगता है अच्छी बात है? नहीं ना। फूड शुड बी कुक, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाते हैं ना कुकिंग से। बैक्टीरिया मारना जरूरी है। बैक्टीरिया मारते मारते हम यहां तक आ गए हैं कि बैक्टीरिया ही हमें मार रहा है। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। इफ यू लुक एट द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम, एवरीथिंग। एक और जानवर बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो। देखा ये हिरन को लास्ट टाइम पालक पनीर बनाते हुए किसी ने देखा ही होगा। देखा था ना? लास्ट कब देखा था? उसको डायबिटीज नहीं होता है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसको कैंसर भी नहीं होता है। और कुक्ड फूड, आई कॉल इट होपलेस फूड। होपलेस। होप क्या है? H फॉर हॉर्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स एंड E फॉर एंजाइम्स निकल जाते हैं। इट बिकम्स होपलेस फूड। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्राणिक फूड एंड नॉन प्राणिक फूड, कुक्ड फूड हैज बिकम डेड फूड। आपने कभी सोचा कि कुक्ड फूड, कभी गौर करिएगा, हम सीड्स खाते हैं। चावल क्या है? दाल क्या है? रोटी क्या है? हम सीड्स खाते हैं बिकॉज सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री। हमें पता है। सीड को आपने बॉयल कर लिया
कुकर में से निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा, उगेगा? क्यों? इट्स डेड फूड। मुझे साइंस दिखा दिया जाए कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। शो मी दैट साइंस, शो मी, आई वांट टू सी दैट साइंस। somebody needs to prove it to me। डेड फूड आपको लाइफ भी दे रहा है, विशफुल थिंकिंग हो, इट कुड बी योर विशफुल थिंकिंग, ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। फूड इज वर्किंग एज अ प्लेसिबो इफेक्ट। आपको लग रहा है कि आपने खाना खा लिया, आप हेल्दी हो गए, इल्यूजरी वर्ल्ड है। जो तारे जहां पे दिखते हैं आपको क्या लगता है वहीं पे हैं? हाँ, कहाँ है? जो फर्मामेंट में तारे दिखते हैं वहां पे हैं कि नहीं है? 14 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स पहले वो अपना प्रकाश वहां से छोड़ के चल चुके हैं, आपको आज दिख रहे हैं। इल्यूजरी वर्ल्ड है, थिंक अबाउट इट, आपको बात समझ में आ जाएगी। सो शुगर एडिक्टिव है। आपको लगता है शुगर से बड़ा कोई एडिक्शन है? सबसे बड़ा एडिक्शन का मॉलिक्यूल का क्या नाम है? हीरोइन, एलएसडी, है ना? इससे बड़ा तो नहीं है कोई? कोई होगा तो मुझे बता देना। तो उससे 400 गुना ज्यादा एडिक्शन शुगर का है। एवरीबडी इज अ शुगर एडिक्ट। आई एम अ रिकवरिंग शुगर एडिक्ट, रेस्ट आर ऑल शुगर एडिक्ट्स। आपको भूख लगती है, भूख लगने का क्या मतलब है? शुगर। जहां भी आप मॉल में फूड खरीदेंगे, एवरीथिंग इज शुगर। बड़े बड़े शॉप्स में फूड खरीदेंगे जो पैक्ड फूड है, शुगर। एवरीथिंग हैज गॉट शुगर। अगर शुगर आपकी जिंदगी से काट दिया जाए, आपका हेल्थ विल कम बैक टू नॉर्मल। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात समझते नहीं। शुगर वाला फूड खाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। एनीवेज, सो विल स्टार्ट विद दिस। शुगर इज एडिक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड। So we are dealing with many things. We are using energy as medicine. In the next 10 years, all healing will be done by energy. ये मेरा prediction है। It will be energy healing. If you have to heal, it has to be with energy. It cannot be with drugs. It cannot be. Energy of any kind. Light is energy, heat is energy, vibration is energy, frequency is energy. तो आपको ये बातें अटपटी लग रही होंगी, मुझे लगता है। You know who Nikola Tesla was? उसकी बातें भी लोग समझते नहीं थे। It was beyond their understanding. Now they have realized यही है। आप देखेंगे धीरे धीरे एनर्जी मेडिसिन टेक्स ओवर एनीथिंग। द वे वी हील पेशेंट्स, हम कैसे हील करते हैं? वी टेक इम्पॉसिबल पेशेंट्स, इम्पॉसिबल जिसको सबने ये मना कर दिया है, वी टेक अप। आई एम बेसिकली अ डायग्नोस्टिक पर्सन। आई डायग्नोज, आई डोंट ट्रीट, बट आई ट्रीट उनको जहां पर सबकी सोच खत्म हो जाती है। We start from there. We take up the patient and we turn them around. Any disease, especially we are working on stage 4 cancers, जिनको सबने छोड़ दिया है. We are taking them up. We are trying to turn them around. और आप सरप्राइज होगे, जो कैंसर्स हैं आज के दिन में, कैंसर को रोक देना अपने आप में मिरेकल है। पूरी दुनिया लगी हुई है। ऑल फॉर्म्स ऑफ हीलिंग आर देयर टू स्टॉप कैंसर। और नहीं, और यहां से बढ़ना नहीं चाहिए। कैंसर को हम यू टर्न दिला रहे हैं। स्टॉप तो हो ही रहा है, वी आर मेकिंग द कैंसर टेक अ यू टर्न। और कुछ में ऐसा यू टर्न दैट
द पेशेंट इज कैंसर फ्री, नो कैंसर। तो छोटी मोटी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो बहुत छोटी डिजीज है। हम तो मतलब 7 days is maximum for diabetics to be treated completely, blood sugar normal in 7 days, no medicine please, no medicine at all, and I don't cure. कौन क्योर करता है? You cure yourself. मैं तो रास्ता दिखाने वाला इंसान, रास्ता दिखाऊंगा आपको करना कैसे, करना आपको है। So this is frequency healing, and you look at the frequency here. Yeah, so this is a thermal scan wherein you scan a person, you will know the aura of that person. This body जो आपको फिजिकल बॉडी दिख रही है, जो मैंने मेटाफिजिकल की बात की, आपको लगता है कभी देखा है आपने? मेटाफिजिकल बॉडी नहीं देखा होगा ना, कोई नहीं देख सकता है। इट्स बियॉन्ड you can't see it. तो फिजिकल, मेटाफिजिकल, फिजिकल बॉडी जो आपकी दिख रही है दैट इज द अन्नमय कोश, इसके ऊपर है प्राणमय कोश, उसके ऊपर है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, एंड देन आनंदमय कोश। आपने ये वर्ड्स पहले सुने थे, प्राणमय कोश। सबको प्राणायाम पता है ना? प्राणायाम इज व्हाट? प्राणायाम इज नॉट ब्रीदिंग, प्लीज। प्राणायाम इज प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में। प्राण इज लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स को जब आप पूरे शरीर में घुमाते हैं, दैट इज प्राणायाम। यस, ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। दैट इज हाउ लाइफ स्टार्टेड। लाइफ स्टार्ट्स लाइक दैट। ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है। ब्रह्मा, आह, ब्रेथ। अल्लाह, आह, ब्रेथ। क्रिश्चियनिटी में उठा, आह, नहीं, ये क्रिश्चियनिटी में न्यूमा कहते हैं, उठा इज ये जुडाइज्म। सो एवरीवेयर द डिवाइन is the breath. That is how life starts. If you look at solid liquid gas, पता होगा ना आपको? Where did this concept come from, by the way? If there is anything, it has come from Sankhya Darshan. Sankhya is Bharatiya philosophy. Anything that you see, like this one, this is made up of Sattva, Raj and Tam. आपने सतगुण, रजगुण और तम गुण ये सुना होगा। दिस इज मेड ऑफ सत्व, रज एंड तम। इफ सत्व एलिमेंट इज मोर, इट बिकम्स सॉलिड। इफ रज एलिमेंट इज मोर, इट बिकम्स लिक्विड। इफ तम एलिमेंट इज मोर, इट बिकम्स गैसियस। सो यू नो नाउ सॉलिड लिक्विड गैस कहां से आया है, कहां से चोरी किया गया है। इस सत्व, रज, तम में अगर चेतना चल पड़ती है तो ये चेतन हो जाता है। चेतना इज व्हाट? कॉन्शियसनेस। अगर इसमें कॉन्शियसनेस घुस गया तो ये लिविंग हो गया, और कॉन्शियसनेस निकल गया तो डेड हो गया, और कॉन्शियसनेस नहीं घुसा तो नॉन लिविंग रह गया। सो नाउ यू नो वेयर लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, एवरीथिंग, ऑल दीज वर्ड्स हैव कम फ्रॉम, यू नो नाउ। ये सारे के सारे संस्कृत से चोरी किए गए वर्ड्स हैं। दे हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेरी ओन भारतीय भाषाओं से। और भारत पे गर्व करना बहुत जरूरी है। मैं जानबूझ के ऐसे अटायर में घूमता हूं क्योंकि आपको बात समझ नहीं आएगी। अंदर से आपको सात्विक ही रहना चाहिए, जो हम लोग अंदर से ये है, बट बाहर से आपको बात समझ नहीं आएगी। इसलिए आपकी भाषा में समझाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग जो सांख्य दर्शन है, दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड। एंड उसमें इफ यू, व्हाट इज प्राणमय कोश?
वी जस्ट सेड व्हाट इज मनोमय कोश. अगर आप किसी से जेलस हैं, मान लीजिए, आप उसको हार्म नहीं कर रहे हैं, आप खुद को हार्म कर रहे हैं. आपके मनोमय कोश में वो बैठता जा रहा है. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिजीज. दिस इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द फिजिकल. यू विल नेम इट बाय डिफरेंट नेम्स. आप देखिए, बीमारियां 9.5 से 9.10 दुनिया को पता है. डॉक्टर्स को इससे ज्यादा बीमारियां नहीं पता है, इसलिए उनको बहुत बड़ा ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है. 10,000 बीमारियां हैं, उनको पता है. बीमार होने के तरीके दो ही हैं. पैथोजेन या तो बाहर से आएगा जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे एलर्जीज. यही 2 तरीके हैं बीमार होने के. बाहर से जो एनिमी आया, बॉडी को ठीक से मालूम है उसको डील कैसे करना है. बॉडी इज स्मार्टर. व्हाट इज स्मार्टर, द बॉडी और द ब्रेन? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे. सो व्हाट इज स्मार्टर, द बायोलॉजी, द बॉडी और द ब्रेन? है ना? कोई डाउट? हाँ, मैं आपको दिखाता हूं बॉडी का स्मार्टनेस. दिखाता हूं. सुबह उठ के इफ यू फील दैट यू नीड टू गो टू द यूरिनल, टू द वॉशरूम, ये थॉट जैसे आता है, जैसे ही ये थॉट आता है, डू यू नो व्हाट हैपेंस? आपको स्लीप से वेकफुलनेस की स्थिति में लाना. वेकफुलनेस से कौन कौन से मसल्स एक साथ काम करेंगे ताकि आप बेड से उठ पाओ, उठ के खड़े होके बैलेंस कर पाओ, बैलेंस होके घूम पाओ, वॉशरूम तक जा पाओ, वहां पर उसके बाद वापस टर्न करके वापस आने का सारा प्लानिंग उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हो गया. जैसे वो थॉट आया, बॉडी ने प्लान कर लिया. विच इज स्मार्टर? You need to understand the body is at least 10,000 times, if not more, smarter than the brain. The body actually knows exactly करना क्या है. हम बेवकूफ इंसान ये समझते हैं कि बॉडी तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए मेडिसिन देते हैं. हमें ये बात समझना पड़ेगा. बॉडी एग्जैक्टली नोज व्हाट टू डू. आई टेल यू व्हाट. जैसे कोरोना आया बाहर से, अभी फिर से स्केयर चल रहा है, सो यू शुड नो. कोई भी पैथोजन अगर बाहर से आया तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी विल ईदर इंक्रीज द टेम्परेचर टू किल द वायरस और विल डिक्रीज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि अगर कोई सेल में लग गया है तो बॉडी के पास AK-47 तो है नहीं. क्या टूल है बॉडी के पास उसको मारने के लिए? इट विल ईदर इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ताकि वो चीज मर जाए. हम क्या कर रहे हैं? We are decreasing the temperature and increasing oxygen concentration. Are we helping the body or harming the body? Which is why during the last pandemic, I like to say we was able to cure 60,000. जिसने हमें कांटेक्ट किया, he was saved. चौथे दिन में जॉगिंग करा दिया हमने उसको. 4th day he was jogging. Whatever his disease condition, whatever his age, अगर उसको कोरोना है, 4th day he will jog. कहीं कोई दवा यूज किया, ना कुछ भी नहीं. We just used common sense. बीमार पड़ते हैं आप तो सबसे पहले जानवरों से बहुत कुछ सीखने वाली बात. क्यों? आपको लगेगा आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं. थिंक अगेन, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं. 2002 में सुनामी आया था, कितने जानवर मरे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी गूगल में देखिएगा. एक भी नहीं. सभी पहाड़ पे भाग गए थे. आप मर गए थे.
जानवरों को आपने कम इंटेलिजेंट समझा हुआ है। उनको पता चल गया था कि सुनामी आ रहा है, आपको नहीं पता चला। वो केएल इंटरनेशनल स्कूल में नहीं गए थे और ना ही सेंट जेवियर स्कूल में हम में पढ़ने गए थे। इसीलिए दुनिया के सारे नॉलेज कहां पे है? 0 पॉइंट एनर्जी पे। 0 पॉइंट एनर्जी और 0 पॉइंट ग्रेविटी धरती पे है। आपके पांव धरती पे नहीं है। रबर का सोल पहनते हैं आप। जिनके पांव धरती पे नहीं हैं वो बहुत दिनों तक धरती पे रहेंगे नहीं। बहुत जरूरी है पांव धरती पे रखना, लिटरली एंड फिगरेटिवली। पांव धरती पे रखिए। ठंड लगती है, वो ठंड जरूरी है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं फुट में, वो ठंड को एब्जॉर्ब करके आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। उनको वंचित ना करिए। इसीलिए मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। दैट इज व्हाट वी फील। We believe that medical education is more important than any medical treatment. So this is how, unless you know, you will not realize. आपको लगेगा आप तो ठीक कर रहे हो। You have to question, and that is what is science. आप अगर फॉलो कर रहे हो, you follow a religion which does not change. Science is something that changes every day. You need to question everything. जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे वो क्वेस्ट नहीं आएगा, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। और मालूम नहीं क्या होगा, इफ यू आर फॉलोइंग नेवर क्वेश्चनिंग, विच मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट। अगर आप साइंस परसू करना चाहते हैं, देयर हैज टू बी, इवन इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, आपको साइंटिफिकली सोचना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? वाह, गुड, ग्रेट। तो महाराणा प्रताप हार गए थे हल्दी घाटी में। आपके बुक्स में तो यही लिखा है। अलेक्जेंडर वैसे तो ग्रेट नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर जब आया था पोरस को उसने हरा दिया था, और फिर उसके बाद उसको बंदी बना के लाया गया अलेक्जेंडर के सामने। और अलेक्जेंडर ने पूछा तुमको कैसे ट्रीट किया जाए, तो वो बोला एज किंग्स ट्रीट किंग्स। पोरस ने जैसे भीख मांगते हुए बोला, अलेक्जेंडर ने छोड़ दिया उसको। आपने यही स्टोरी पढ़ा है ना? हाँ, हिस्ट्री में यही स्टोरी पढ़ा है ना? कभी क्वेश्चन किया है? इसके लिए आपको उस समय के इतिहास को जीना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर भारत में आने के पहले करीब करीब 222 राजाओं को हरा के आया था। उन राजाओं के साथ कैसे बिहेव किया था उसने? या तो उनका गला काट दिया था, या उनको युद्ध में मार दिया था। उनको जिंदा नहीं छोड़ा था उसने। या हृदय परिवर्तन भारत में आके हो गया कि पोरस को छोड़ दिया उसने? पहला क्वेश्चन, अगर साइंटिफिक दिमाग है तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू माइंड। क्या ऐसा हृदय परिवर्तन भारत की पावन भूमि में आके हो गया क्या? अनलाइकली। अलेक्जेंडर की मौत कैसे हुई? अलेक्जेंडर जब यहां से वापस जा रहा था, कबीलों ने आर्मी पे अटैक कर दिया और आर्मी को हरा दिया, अलेक्जेंडर को घायल कर दिया। अलेक्जेंड्रिया में जाके उसकी मौत हो गई। 2 मिनट के लिए रिकैपिचुलेट करिए ये स्टेटमेंट। विश्व जीती हुई आर्मी जिस रास्ते से चलती है, देश रास्ता छोड़ देते हैं। कबीलों की इतनी मजाल, कबीले हारी हुई आर्मी पे अटैक करते हैं, जीती हुई आर्मी पे नहीं। बहुत बुरी तरह अलेक्जेंडर को हराया गया होगा, और माफ करने की स्थिति सिर्फ भारतीयों में होती है। हम माफ करते हैं, जिसको हमारी कायरता भी कई बार समझी जाती है। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने
माफ किया था मोहम्मद घोरी को। 16 बार, 17वीं बार उसने उसी को वो कर दिया। तो यू नीड टू क्वेश्चन, यू नीड टू क्वेश्चन। तो हारी हुई आर्मी जा रही थी, कबीलों ने लूटपाट के लिए कबीले अटैक करते हैं। हारी हुई आर्मी भागती हुई जा रही थी, कबीलों ने अटैक किया, आर्मी को भी हराया, अलेक्जेंडर को भी मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसीलिए हर चीज को क्वेश्चन करना जरूरी है। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप हार गए थे। हारने के कुछ नियम होते हैं, या तो राजा बंदी बना लिया गया या मार दिया गया। ये दोनों में से क्या हुआ था? किस बेसिस पे बोला जा रहा है कि वो हार गए थे? इट नीड्स टू बी क्वेश्चन, इट नीड्स टू बी क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में लिखा है इट नीड्स टू बी क्वेश्चन। किसने लिखा है? दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन। अनलेस यू डू दैट, तब तक साइंटिफिक दिमाग चलेगा नहीं। और वैसे भी बहुत गर्व करने वाली बात है, मेरठ इतिहास में किस चीज के लिए फेमस है? 1857 क्रांति के लिए फेमस है। म्यूटिनी मत बोलिएगा प्लीज। म्यूटिनी वो सिपाही म्यूटिनी, इतिहास में आपको पढ़ाएगा। क्रांति के लिए फेमस है। और 1857 में क्रांति मंगल पांडे से शुरू हुई थी, और वहां से होते होते रानी लक्ष्मीबाई तक जब आई। इनफैक्ट इतिहास में कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, अगर वो न होते तो इतिहास बदल जाता, हर कुछ बदल जाता। जैसे इतना टेरर स्ट्रिकन ब्रिटिश थे, इतना टेरर स्ट्रिकन थे 1857 में, आपको उनके एनल्स से पढ़ना पड़ेगा कि उनकी क्या स्थिति थी। ये भारत के एनल्स से आपको नहीं मिलेगा, आपको लंदन के एनल्स से पढ़ना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या थी। वो सोच रहे थे कि अब बॉस ये बहुत हुआ, भागो यहां से, क्योंकि एक 23 साल की वीरांगना, मणिकर्णिका नाम था उसका, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप जानते हैं, उसने ऐसी मारकाट मचाई, ऐसी मारकाट मचाई कि वो एक्चुअली डर गए कि जब ये एक लड़की 23 साल की ऐसे कर सकती है तो भारत में कितने वीर होंगे। हम तो यहां पर टिक ही नहीं पाएंगे, हमें तो भाग लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या था कि वो घोड़ा अड़ गया ग्वालियर में। नया घोड़ा था, सारंगी नाम था उसका। वो ग्वालियर में एक नाले पे अड़ गया, नाले के पार नहीं कूदा। रानी का आधा सर कट गया था, पूरे इसमें तलवार लगे हुए थे, अपने पटके से बांधा था उसने, और उस स्थिति में 16-17 को काट दिया था उसने। उस स्थिति में आधा सर कट गया था, एक आंख में गोली लग गई थी, उस स्थिति में 16-17 को काट दिया था। आप सोचिए अगर वो घोड़ा रानी को लेके कूद जाता तो क्या होता, इतिहास बदल जाता। उसमें था वो घोड़े पे एक ये क्वेश्चन मार्क है, वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तो चूक गया लिखते लिखते पन्ने कुछ अमर कहानी के। अगर वो घोड़ा पार कर जाता, जैसे चेतक पार कर गया था, अगर वो घोड़ा पार कर जाता, इतिहास बदल जाता, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसी समय चले जाते। वो कुछ एक घटनाएं इतिहास में पूरे के पूरे इतिहास को बदल सकती थी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू हेल्थ एंड डिजीज, so this is the aura scanner that we talked about. Next slide please. Now the power of plant proteins. क्या आपको लगता है कि एनिमल्स या प्लांट्स, which food is better? क्यों? ये तो taught है। I thought I'm here to teach. You are already taught. You cannot teach the taught. Good, I'm happy. Plants कैसे? एनिमल्स में ज्यादा प्रोटीन होता है।
हाँ, so should there be a debate which protein is better, plants or animals? Why? Why? Textbooks say that first class proteins come from animals only. आप कोई भी, मैं तो बायोकेमिस्ट्री का मेडिकल टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, हमें पढ़ाया गया है फर्स्ट क्लास प्रोटीन सिर्फ एनिमल से आते हैं, प्लांट्स के पास कैपेसिटी ही नहीं है। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, इन बातों को कभी क्वेश्चन नहीं किया हमने। प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या माइक्रोन्यूट्राइंट्स हो या मैक्रोन्यूट्राइंट्स हो, देते क्या है आपको? एनर्जी। एनर्जी का पूरी विश्व में सोर्स क्या है? सन। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ। प्लीज, इसमें कोई डाउट है आपको? कहीं कोई डाउट? ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन का 10% ऑफ द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। एक रोश कंपनी का मेरे बगल में बैठा हुआ था, मैं कहीं जा रहा था, तो वो लोग विटामिन डी का कैप्सूल्स बनाते हैं। हमने बोला बॉस तुमने तो क्या साइंस है बॉस, सूरज की रोशनी को कैप्सूल में कैप्चर कर ही लिया फाइनली, है ना? विटामिन डी सूरज से बनता है, अगर कैप्सूल से आप बना रहे हैं तो जरूर सूरज की रोशनी को कैप्चर किया होगा उन्होंने। सूरज की रोशनी सिर्फ पत्तों में कैप्चर होती है, क्लोरोफिल कहते हैं उसको। क्लोरोफिल इज द ब्लड ऑफ प्लांट्स, हीमोग्लोबिन इज द ब्लड ऑफ एनिमल्स। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन साइंटिफिकली एक ही मॉलिक्यूल है, एक में मैग्नीशियम है एक में आयरन है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लोरोफिल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हीमोग्लोबिन है। क्या नेचर को और कोई सिग्नेचर देने की जरूरत है? और कुछ बताने की जरूरत है? इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी विच सेड हाथी को कैंसर नहीं होता है। दे स्टार्टेड लुकिंग एट जीन्स। बॉस तुम जीन्स तक तो पहुंच गए, उसका जीवन देखते हो? जीवन तुमने देखा नहीं, जीन्स तक पहुंच गए। उस जीवन शैली में आप आ जाइए, आपको भी कैंसर नहीं होगा। आप उस जीवन शैली में नहीं आएंगे, आप जीन के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि जीवन शैली बेचने या खरीदने में पैसे नहीं मिलते हैं। जीन का कुछ करेंगे तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, उसके बाद उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। तो सारा कुछ बेसिक बातें अगर आपको मालूम हो तो आप कभी बीमार ही ना पड़े। तो दैट इज हाउ प्लांट प्रोटीन्स are better than animal proteins. Next slide, please. So the best 7 doctors that you see are sunshine, water, rest, diet, air, exercise and empathy. Empathy मतलब? Why is empathy important? जो अभी पैंडेमिक आया था, इसमें ज्यादातर लोग अगर आइसोलेट नहीं होते तो जिंदा रहते। उनको लगा कि हमारा कुछ रह नहीं गया है, सोशली काट दिया गया उनको, वो मर गए। बिकॉज कोरोना इतना माइल्ड है, उससे किसी का डेथ हो, बात समझ में नहीं आती। कुछ ना कुछ और बातें साथ में जुड़ती जाती हैं। डेथ का कारण वो है, कोरोना कैन नॉट बी रीजन फॉर डेथ, इज अ वेरी माइल्ड डिजीज। इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो एम्पैथी इज व्हाट? इम्यून सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम टी और बी सेल से चलता है, सबको पता होगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो सब में था टी और बी सेल्स, तो क्यों नहीं चला? वायरस से कोई पेशेंट मरा नहीं, इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से मरा है।
जितने भी पेशेंट्स का डेथ हुआ है सबका इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन। इम्यून सिस्टम कैसे चलता है? टी एंड बी सेल्स से, टी एंड बी सेल्स से तो सबके पास है। उसके ड्राइवर्स दया, माया, ममता, करुणा है। आपकी जिंदगी में नहीं है। अगर नहीं है तो इम्यून सिस्टम चलेगा नहीं। प्लीज, यू नीड टू री इंस्टॉल दिस। जब तक आप री इंस्टॉल नहीं करेंगे इम्यून सिस्टम, सब टी एंड बी सेल्स हैं, चलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। So that is the importance of empathy. Next slide, please. So our role in the physical world, physical body में हमारा रोल वहां से शुरू होता है when life starts. Life starts. You are a multicellular or unicellular? क्या बात करते हैं? Sure? एक कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट उठ जाए भाई। हाँ, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर कैसे? रेप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल, नॉन सेक्सुअल। जाइगोट नॉन सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है वो। So that is replica of one cell is this whole body. Why can't you be called unicellular? You tell me. I want to know the reason. Always question is the motto. You should always question, because multiplicity is duplication by sexual reproduction. That is multiplicity. Okay? एक सेल एमीबा भी है, एक सेल आप भी हैं। आपके ज्यादा एडवेंटिशियस सेल्स बढ़ गए हैं। दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस। हाथ कुछ और काम कर रहा है, ब्रेन कुछ और काम कर रहा है। अमीबा में ये चीज, ये लग्जरी नहीं है, इसीलिए वो वैसे है, आप ऐसे हैं। All cells are same. The basic structure of all cells are same. That is why the concept of auto transplant is coming in. आपके एक सेल से आप सब कुछ बना सकते हैं, उसको साइंस कहते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि स्टोन को, गॉल ब्लैडर को निकाल दो। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, यूट्रस को निकाल दो। कल को आप में कुछ हो जाएगा, हाथ ही निकाल दो, पैर निकाल दो। दैट इज नॉट साइंस। दैट इज नॉट साइंस। साइंस इज गॉल ब्लैडर को वहीं रखो, कोई ऐसा काम करो कि स्टोन निकल जाए और गॉल ब्लैडर फिर से फंक्शन करने लगे। दैट इज साइंस। That is why we have started the integrated medicine department here, wherein we are taking the help of all healing sciences to heal a patient scientifically, using all the science at our command to cure a patient, to heal a patient completely of any disease. ठीक है? Okay, so life ends. तो हमारा रोल इन द फिजिकल रियम अल्ट्रासाउंड से यहां पे शुरू हो जाता है टू डायग्नोज प्रेगनेंसी है कि नहीं। वहां से जैसे जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, रेडियोलॉजिस्ट का रोल रहता ही है। चेस्ट एक्सरे से लेके सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, एवरीथिंग, वो रोल रहता ही। डेथ तक वी आर देयर विद द पेशेंट। So you know what happens, that gives us a clue. कार्डियोलॉजिस्ट को आप किडनी के बारे में पूछो, बोलेगा नहीं वो मेरा रियाम नहीं है, तुम किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। हमारे पास जब पेशेंट आता है, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है। हमें तो बोलना पड़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट से कार्डियोलॉजी के लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, नेफ्रोलॉजी से नेफ्रोलॉजी के लैंग्वेज में, ब्रेन वाले से न्यूरोलॉजी के लैंग्वेज में, न्यूरोसर्जन से न्यूरोसर्जरी के लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। सो we are supposed to know everything about everything. Unless we do that, we are not successful in our basic profession, जहां से हम शुरू किए थे as a radiologist. So that's how. Next slide, please. ये कौन है? पांडा। क्यों इंपॉर्टेंट है? सुंदर नहीं है? है ना?
सुंदरता के लिए तुम आपने लैक्मे क्रीम कब कब देखा इसको लगाते हुए? लिपस्टिक तो लगाया ही होगा, नहीं? ये रॉ फूड खाता है इसीलिए सुंदर है। तो नेक्स्ट टाइम से, इनफैक्ट देयर आर सो मेनी मिथ्स दैट यू शुड नो। यू नो व्हाट, लोग बैड स्मेल करते हैं, दे स्मेल बैड ओरली ऑल्सो। वही लोग बैड स्मेल करते हैं जो टूथपेस्ट यूज करते हैं। कभी आपने सोचा नहीं? जो टूथपेस्ट यूज करते हैं बैड स्मेल करते हैं, जो सोप यूज करते हैं उनका स्किन बैड स्मेल करता है। मैं आपको दिखाता हूं साइंटिफिकली, मैं कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दूंगा नहीं जो साइंटिफिक नहीं होगा। आई विल शो इट टू यू। पीएच मालूम है ना क्या है? क्या है पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पर हाइड्रोजन है ना? सो जैसे लॉग, पीएच इज नॉट अ लीनियर स्केल, इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल। पीएच 6 और 7 में 10 का अंतर है, पीएच 4 और 7 में 1000 का अंतर है, प्लीज। सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग। सो आपका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। स्किन का पीएच कितना है? 5.5। 5.5 is the pH of skin. Skin is acidic, right? जो आप सोप यूज करते हो पीएच कितना है? अल्कलाइन है वो, 8.0। अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि एसिडिक चीजों को प्लास्टिक में आप रैप करके बेच नहीं सकते हैं। आप बात समझिए प्लीज, ये सब बेचने की स्थितियां हैं। तो आपका स्किन एसिडिक, सोप अल्कलाइन, एसिड एल्कली मिलके क्या बनता है? ये हमें 6-7 स्टैंडर्ड में तो पता चल गया था, है ना? हमें पढ़ा दिया गया था। व्हाइट हेड्स जो आपके स्किन में बन रहे हैं और ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, उसको आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो निकालने के लिए, सोप क्यों नहीं बंद करते हो यार? ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, कॉमन सेंस नहीं है क्या? अब स्किन का पीएच कितना था? मिट्टी का पीएच कितना है? 5.5। क्या कोई मैसेज दे रही है मिट्टी? क्या मिट्टी में इंफेक्शन है क्या? आप देखिए, जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, इंफेक्शन अगर दिखता है तो आप ज्यादा पढ़ लिख गए, आप ज्यादा पढ़ लिख गए। 2 कदम वापस आइए, वापस आना पड़ेगा आपको। स्किन कभी फटेगा नहीं अगर मिट्टी यूज करेंगे। पहले हम मिट्टी यूज करते थे, हम भारतीयता छोड़ते जा रहे हैं और शायद इसीलिए बीमार है, शायद इसीलिए हमारे में वो शक्ति भी नहीं रह गई है कि हम लोगों को अब वो करें। और ये भी करने लग गए हैं कि हमें लगता है कि लाइफ तो यूएस में ही है, कभी जाओ देखो पता चलेगा। स्टे देयर फॉर 2 or 3 months anywhere outside the country। समुद्र के ऊपर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसको भारत कहते हैं, उसकी संतान को भारतीय कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विष्णु पुराण कह रहा है। विष्णु पुराण का एज व्हेन इट वाज रिटन वैसे तो लाखों साल है, लेकिन 5500 बाय ऑल कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स इट इज 5500 years old। यही एक ऐसी धरती है जहां पर सुबह सूरज उगते हैं, शाम को डूबते हैं। एक और देश बता दीजिए जहां पर ऐसा है। एक और देश बताइए जहां पर 6 ऋतुएं हैं। दिखाइए मुझे, इस ग्लोब पे कहीं दिखा दीजिए आप। प्रजापति ने खुद ही रचा है भारत को, इसलिए गर्व करिए भारतीय होने पे। और वैसे भी हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है, भविष्य भी होगा, हम जानते हैं। So we stop here. Thank you very much. And if there are any questions, I'll be glad to answer.
I'll be glad to answer questions, and there should be questions, because if there are no questions, which means 0% of whatever was said was absorbed. Yes, please. As you said about the five courses, like Anmay course, Pranmay course, Manomay course, Vigyanmay course. So, sir, Anandmay Kosh. Anandmay Kosh is the last one. Yeah. So, sir, like you have said about those, how can we all we can work as a single unit? Like I've also studied about these all courses in art of living, and so I want to. दो चीजें होती हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल. आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो? पक्का? दैट्स अ वेरी नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट बाय द वे. कैन यू क्वांटिफाई इट? 2 किलो प्यार करते हो कि 2 किलोमीटर प्यार करते हो? साइंस की औकात वहां तक पहुंची नहीं है कि लव को वो क्वांटिफाई कर पाए. इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि साइंटिफिकली इनकरेक्ट है. साइंस का वो लेवल ही नहीं है अभी. साइंस हैज टू कम टू दैट लेवल. क्या आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो? ये रियलिटी है ना. बट साइंटिफिकली दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इसी तरह जो फिजिकल बॉडी दिखता है, दैट इज द अन्नमय कोश. आपने अन्न से एक सेल को, जाइगोट को, अन्न से ही मां के वूम में बड़ा किया गया. आप अन्न खा खा के इतना बड़ा किए हो इसको, इसीलिए अन्नमय कोश है. इसको चलाता है प्राणमय कोश. प्राणमय कोश को मनोमय कोश चलाता है. मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश चलाता है. एंड प्लीज, संस्कृत का कोई पर्यायवाची शब्द किसी दुनिया के लैंग्वेज में है नहीं. प्लीज, साइंस को विज्ञान नहीं बोलते हैं. प्लीज प्लीज अपने दिमाग से डेफिनेशंस क्लियर करिए. विज्ञान इज विशेष ज्ञान. विशेष ज्ञान आपको तब होता है जब ये 5 सेंसेस से जो भी आप एब्जॉर्ब करते हो, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट. यही 5 सेंसेस हैं. इससे जो भी इनपुट्स जाते हैं, जो आप इसका मंथन करते हो, जो आपको बोध होता है, वो एक विशेष ज्ञान आपका है. उसी को विज्ञान कहते हैं. विज्ञान का पर्यायवाची शब्द साइंस नहीं है. तो बहुत सी ऐसी ये बातें होंगी, जैसे कोई भी वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं ना. हिंदी में, संस्कृत में उसको विलोम कहते हैं. आनंद का विलोम क्या है? ऊंच का विलोम है नीच. सुख का विलोम है दुख. आनंद का विलोम क्या है? आनंद का कोई विलोम ही नहीं है. विवाह का क्या विलोम है? मैरिज का विलोम डिवोर्स हो सकता है. शादी का विलोम नहीं, निकाह का विलोम तलाक हो सकता है. यह भारत की संस्कृति है. डिवोर्स का कोई वर्ड संस्कृत में है ही नहीं. है ही नहीं. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डीप वी आर. हम बहुत डीप संस्कृति हैं. जहां पर सुपरफिशियली आपको नजर आते हैं, वो तो है ही हैं. बहुत ज्यादा गहरे हैं. वो समझने के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट. कभी सोचिएगा इस बात पे. यस, सो दैट इज हाउ ये जो कोश है, ये जो कोश है, ये सभी, अब जैसे मनोमय कोश, आप अगर सांप काट लिया, सपोज अगर सांप काट लिया, आपको मालूम है 100 में से 97 मर जाते हैं सांप के काटने वाले. हम रोज देखते हैं, हमारा ये रोज का काम है. उसमें से एक आदमी जहर से मरता है, बाकी 96 इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट लिया. तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिजीज नहीं है उसका मनोमय कोश डिजीज है, और वो आपको जीने नहीं देगा. इसीलिए पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. हमें वो लोग जिनको अगर नेगेटिव हैं, आप उनको छोटी सी बीमारी से मर जाएंगे. वो जो लोग पॉजिटिव हैं, वो बड़ी से बड़ी बीमारी झेल ले जाएंगे. वो
बिकॉज ये बॉडी को अन्न, ये जो अन्नमय कोश है, इसको ऊपर से संचालित होता है ये। और वैसे भी फिबोनाची नंबर्स मालूम है आपको? फिबोनाची नंबर्स मालूम है? पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है? कभी गूगल में देखिएगा पाइथागोरस ने कहां से वो थ्योरम सीखा था, गूगल पे है इसका, इतिहास में जाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम टाइप करके हिस्ट्री में जाइएगा, आप देखिएगा कि पाइथागोरस को संस्कृत आती थी कि नहीं, आप देखिएगा कि वो मद्रास आया था कि नहीं, उसके दूसरे बुक का क्या नाम है, जो एक दूसरा बुक लिखा है उसने, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, ये भारत का कल्चर है। आत्मा अवैध है, शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा, शरीर का जितना मर्जी वो कर लो आप, गीता का यही ज्ञान है। लेकिन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इंग्लिश में, क्योंकि लोग संस्कृत पढ़ते नहीं है ना, इंग्लिश में दिया गया क्या है, वो कर्म किए जा फल की इच्छा, सबको लगता है पता नहीं क्या कंफ्यूजिंग है। गीता का सार तत्व यह है कि शरीर वैसे भी नहीं बचेगा, आत्मा अमर है। जिस आदमी को यह ज्ञान हो गया वो निडर हो गया। इसीलिए जो चारण होते थे ना, 20-20 चारण, कभी आपने टाइटल सुना है चारण? शिव चारण, चरण चरण भी कई लोग बोलते हैं, चारण है वो। चाह रण, सभी चाह मिट गई, सिर्फ रण की चाह रह गई। वो लोग डोर कीपर्स होते थे, जैसे ही कोई एनिमी आता था दोनों हाथ में तलवार लेके काटते हुए निकलते थे, 20-20 हजार पे भारी पड़ते थे। ये भारत के वीरों की अगर गाथा सुनाई जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। एनीवे, सो दैट इज, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यस, once again. The knowledge consciousness and rest consciousness. Sir, you have told us there are the two things are knowledge and rest. Sir, you are talking about Gita. Sir, it is written in Gita that if you are creating any type of thing, sir, वो हम पे इफेक्ट करेगा और environment को। तो सर जब knowledge खा रहे हैं तब भी पेन क्रिएट हो रहा है, वेस्ट खा रहे हैं तब भी पेन क्रिएट हो रहा है। मतलब पूरा प्लांट की खा सकते हो और knowledge भी खा सकते हो। गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बैठिए। यस, From Sanskrit language, it is it means flame. इसका मतलब होता है बर्म, एटमोस्ट एवरीथिंग। सर खाने से कैसे रिलेट करते हो? मैं आपका प्रश्न फिर से सुनना चाहूंगा। कैन समबडी पास दिस ऑन प्लीज? या I'm asking you, सर नॉन-वेज खा रहे हैं तब भी पेन क्रिएट हो रहा है, वेज खा रहे हैं तब भी पेन क्रिएट हो रहा है। पेन? यस सर। क्या सर पेन? पेन क्यों क्रिएट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सर किसी ने, सर जब वो जो जानवर हम खाते हैं, जो चिकन वगैरह होता है, सर जिस टाइम उसको मार रहे होते हैं, सर इसमें तो ये तो आप बिलीव करोगे ना, जिस टाइम अगर कोई इंसान को मार रहा है, उसे मारने उसका टाइम नहीं आया मरने का, तो उस टाइम उसका क्या होगा, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा होगा, क्या सेंसेशन होगी, कितना वो टेंस होगा। सर वो टेंशन उसकी सेंसेशन मरने के बाद भी रही, और सर वही जो सेंसेशन है वो हम खा रहे हैं, और सर इनडायरेक्टली भी देखें तब भी कोई मार भी हो रहा है, तब खा हम भी तो लेना, तो अफेक्ट तो वो हमें भी करेगा, एनवायरनमेंट को भी करेगा। और ऐसी सर अगर प्लांट्स में देखें, हाँ सर वो बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, लेकिन पेन तो सर उसमें भी क्रिएट होगा ना, क्योंकि लिविंग है, और सर उन्हें हम खा रहे हैं तो वो भी पेन क्रिएट हो रहा है, कम क्रिएट हो रहा है, तो मतलब पर हम कर तो है ना, मतलब सही तो नहीं कर रहे प्लांट्स खाकर, तो ना तो सर नॉट। ओके, कीप द माइक विथ यू। पहली चीज ये है कि भारत और भारतीयता में हम सब्जियों को काटते नहीं हैं, हम सब्जियों को काटते नहीं हैं, बैठो ना, सब्जियों को सुधारते हैं।
कभी आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म। योग के जो 8 अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम का पहला नियम, यम कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा बात से भी नहीं, विचार से भी नहीं, बोली से भी नहीं, और हाथ से तो बिल्कुल ही नहीं, हाथ और पैर से तो बिल्कुल ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म। भारत से निकले हुए जितने पूजा पद्धतियां हैं, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, सब इस बात को मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। चाहे वो सिखिज्म हो, सिखिज्म भी, हाँ, वो निडर होते हैं, निर्वैर। तो कमिंग बैक टू दिस, जहां भी आपने कॉन्शियसनेस का हनन किया, कहीं पर आप जायज हैं, बहुत सी जगह जायज नहीं है। जैसे इफ यू लुक एट अ ट्री, एक चिकन कितने अंडे पूरे जिंदगी में दे लेती है? एक हेन कितने अंडे दे लेती है? करीब करीब 200, पूरे लाइफ टाइम में 200। क्यों दे रही है? अपने स्पीशीज को प्रोपगेट करने के लिए, है ना, आपके खाने के लिए नहीं। एक बीज जो एक पेड़ बनता है, कितने सीड्स देता है ऑन एन एवरेज? बिलियंस, नॉट ओनली मिलियंस, बिलियंस। वो सिर्फ प्रोपगेट करने के लिए नहीं, आपके खाने के लिए भी। ये नेचर का मैसेज है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जरा नेचर में घूमिए और देखिए, एक हेन 200 अंडे अपने पूरे लाइफ टाइम में देती है। 200 हेन अपना स्पीशी प्रोपगेट करने के लिए, पेड़ भी करता है, यही काम करता है, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा है कि आप बड़े आराम से, आपको भी फीड करेगा, क्योंकि आपके पास वो क्लोरोफिल नहीं है। आप अपनी एनर्जी बना नहीं सकते, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, कहीं से तो लेना पड़ेगा। नेचर ने सबका इंतजाम किया है, तो ये आपका इंतजाम किया गया है। लेकिन चिकन को मारना इंतजाम नहीं है। और जहां तक कॉन्शियसनेस की बात है, देयर इज एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, देयर इज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। योर कॉन्शियसनेस इज योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ टाइम, इज योर कॉन्शियसनेस। So whatever you experience is your consciousness. If it meets others' consciousness, it becomes universal consciousness. जितने भी plants और animals से आप interact करते हो, उनमें भी consciousness है. So the cumulative knowledge of all these, the cumulative experiences that one experiences within a lifetime is called universal consciousness. And जैसे सत्व रज तम में चेतना चल पड़ी, चेतना is what? Consciousness. तो वो कॉन्शियस हो जाता है। उसी तरह किसी भी चीज में अगर चेतना चल पड़ती है तो वो कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियसनेस सबसे पहले उसमें क्या आता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंग्लिश में ब्रेन को इंटेलिजेंस से नापा जाता है। संस्कृत में 160 वर्ड्स हैं, 160 पार्ट्स हैं ब्रेन के। मोर और लेस 4, आप 4 समझिए, 4 आपने सुना होगा। बुद्धि भी है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, आपने सुना होगा। बुद्धि इज इंटेलेक्ट, मन इज योर विल, अहंकार इज योर जियो पोजिशनल स्टेटस। आप कहां पे बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात करना है, geopositional status will tell you. And chit is memory. Memory is not only this memory. Not only this memory, the memory that you are, आप कुछ पढ़ लिया तो आपकी मेमोरी, आपकी धार्मिक, आपकी कार्मिक, आपकी सभी मेमोरीज आपके चित्त में स्टोर्ड है. We just need to redecipher it. So thank you for that question, and it was a very extended answer.
Any more questions, please? Yes, please. गुड मॉर्निंग सर। सर जैसा कि आपने कहा जो हमारी बॉडी है वो ब्रेन से ज्यादा स्मार्ट है। जो आपने प्रोसेस बताया वो छोड़ के हमारी बॉडी को फॉर्म करती है विद इन फ्रैक्शन सेकंड्स। लेकिन सर जो सिग्नल आता है वो तो हमें ब्रेन से आता है ना फ्रैक्शन सेकंड्स में। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारी बॉडी ज्यादा स्मार्ट है ब्रेन नहीं है? अभी बता। गुड। ऐसा है, जो ब्रेन इज अ रिले सेंटर, सीपीयू है वो। इनपुट आया, उसको प्रोसेस करके आउटपुट भेजा उसने। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट अ सीपीयू इज, ब्रेन इज एग्जैक्टली दैट, राइट? तो अगर वो आउटपुट भेजती है तो एक एक सेल में नर्व सप्लाई है? नहीं है, एक एक सेल में नहीं है। टिश्यू लेवल तक नर्व सप्लाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। टिश्यू लेवल के बाद वो मैसेज सेल तक कैसे पहुंचता है? हाँ, हो सकता है नहीं, हमें पता है, हो सकता है नहीं। टिश्यू लेवल तक मोटर इनपुट आया, देयर वाज अ सेंसरी इनपुट, देयर वाज अ मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट टिश्यू लेवल तक जाता है। टिश्यू लेवल के बाद दैट सेम मैसेज इज कैरीड फ्रॉम वन सेल टू द अदर बाय हार्मोन्स। सो हार्मोन्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, ये लिंगो है। एंड इट इज द हार्मोन्स दैट carry the message. So brain is just a center. Each and every cell has the capability of independent existence. Independent existence. ये कैसे पता चला? जब कैंसर होता है तब पता चलता है। आप देखेंगे कैंसर जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर को हम कुछ मार्कर्स से पहचानते हैं। जैसे CEA एक ट्यूमर मार्कर है। फुल फॉर्म क्या है उसका? कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। मतलब द सेल हैज टर्न्ड इन द एम्ब्रियोनिक फेज में चला गया। ईच एंड एवरी सेल हैज एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इट इज जस्ट दैट वी हैव कम टुगेदर एंड वी आर स्टेइंग इन द सेम बॉडी। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। तो जो आपका प्रश्न था, ईच एंड एवरी सेल इज स्मार्ट एनफ, स्मार्ट एनफ। उसको हेल्प करने के लिए, जैसे आप सब कुछ के लिए कैपेबल हैं, लेकिन रोड्स नहीं होते तो आप ट्रैवल कैसे करते? तो रोड्स हैं वो आपके सहूलियत के लिए, राइट? उसी तरह ब्रेन है, वो एक रोड, एक चैनल बनाया हुआ है उसने, वो सेल के लिए है। सो द ईच एंड एवरी सेल हैज द कैपेसिटी ऑफ everything. It is the most intelligent। और ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये each and every cell में है। It is not the brain कि centrally यहां पर है, बाकी सब जगह है नहीं, ऐसा नहीं। So that's how it is। जी सर अगर हर एक सेल इंडिपेंडेंट है अपने खुद के लिए, तो हर एक सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, तो इंडिपेंडेंट सेल बहुत सारे का मल्टी सेलुलर होएगा। ये मल्टी सेलुलर वर्ड जो है, ये when the cells multiply, there are two ways of multiplying, mitosis and meiosis, है ना? Meiosis is sexual reproduction, that is actual reproduction. Mitosis is adventitious reproduction. मेरा बोलने का मतलब ये था कि that is adventitious। तो आपको यूनिसेलुलर क्यों ना कहा जाए? It was just a thought. Anyway, one cell has multiplied into many cells,
So these are multiple cells, but the exact same replica of that one zygote that started life. और वो zygote में देर आजकल आजकल कैमराज हैं जिससे कैप्चर हुआ है. As soon as the sperm fuses with the ovum, there is a big blast of light. Consciousness has started. Consciousness starts. That is how that is where. और लाइट के रेज ऐसा देखा गया है, लाइट के रेज जितने ज्यादा प्रखर है उसकी जिंदगी उतनी लंबी होती है. जितने कम अगर लाइट के रेज कम है तो अर्ली डेथ हो जाता है बंदे का. दैट इज व्हाट इज सीन. सो इट एवरीथिंग इज ट्रांसक्राइब्ड इनसाइड यू. यू जस्ट नीड टू redecipher it and rediscover it. Sir, I want to ask that, like you have told me in cold weathers, we should walk barefoot because of the acupressure. But sir, there are some weak people who can't tolerate this cold. So sir, they are protecting themselves from this cold. So I don't think they are doing anything wrong. So how can this acupressure help weak people? Cold weather? नहीं, weak or strong could be your perception. Till the time the सांस जब तक चल रही है, हम तो किसी को वीक मानते नहीं है. It is like this. There are people who have, यहां से वो हार गए हैं कि अब मैं कर नहीं सकता. उसमें सिर्फ इंस्टिल करने वाली बात है. आप कभी हमारे हॉस्पिटल आए और देखें, आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं. क्या करते हैं हम तो ना सर्जरी करते हैं, ना कोई दवा देते हैं, हम तो कुछ नहीं करते. यू नीड टू सी दैट. कभी आप हमारे हॉस्पिटल के वेबसाइट पे जाइए, आपको दिखेगा HIIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस. आप अगर देखेंगे आपको दिखेगा हम क्या करते हैं. आप सोचिए, डायबिटीज, कितने लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज है? बस 3-4 नहीं हो सकता है. हाँ, देयर शुड बी अराउंड, क्योंकि आज भारत में डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा है. आपके पेरेंट्स दवा खाते होंगे. 7 डेज में ऐसी कोई डायबिटीज नहीं है जो क्योर नहीं हो सकती है. कैसे? जैसे डायबिटीज सबको पता होगा, इट्स अ ब्लड शुगर डिजीज. इट इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज. इट इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज. जब तक ये कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं तब तक क्योर नहीं होंगे. आई वुड रिक्वेस्ट, वो मेरा @Dr. अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखिए. आपको कई बातें समझ में आएगा. हम करते कैसे हैं? जैसे ही आप खाना खाएंगे, इंसुलिन गोज हाई. इट इज हाइपर इंसुलिनीमिया दैट कॉजेज डायबिटीज. ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया. वी आर लोअरिंग द इंसुलिन लेवल्स. ब्लड शुगर अपने आप झक मार के नॉर्मल होगा. यू गेट माई पॉइंट? सो वी आर डूइंग इट वेरी साइंटिफिकली. कैसे हम करते हैं, दैट इज हाउ वी डू इट. थैंक यू वेरी मच. Good afternoon, everyone. Wonderful Today, session. I really feel very short of words after this eye-opening session. And what I realized that so far it was my perception that life is full of trials and tribulations, but now I feel it was disalignment. And Sir has put his little feet on the axis where he has pulled us all towards that center where we need to be, mentally, physically, spiritually, in all the ways. Thank you so much, sir. But let me tell you, this is just an appetizer. Main course is still looked forward. And we request you for that, sir. Thank you so much.